Okay. So I guess we should be starting right now क्योंकि ज़्यादा डिले करके फायदा नहीं है. Hello all, my name is Bharat Bhushan Asthana and I have given UPSC interview as also I have qualified the Haryana Civil Services examination and West Bengal prelims examination. So I am also the founder of BWise IAS and today we are going to launch a specific program which is a free initiative of BWise IAS. It is related to UPSC CAPF AC Assistant Commandant interview. So we are going to launch a mentorship program for this particular thing. एंड इस चीज के जो लीड करेंगे ना हमें इस पर्टिकुलर पूरे इनिशिएटिव में जो यूपी CAPF के जो असिस्टेंट कमांडेंट के जो एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने पहले इसका रिटर्न एग्जामिनेशन निकाल लिया है, फिजिकल निकाल लिया है एंड मेडिकल निकाल लिया है एंड इसके बाद जो इंटरव्यू रहता है जिसका लास्ट स्टेज फाइनल स्टेज है जिसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे. तो इस पूरे प्रोग्राम के जो हमारे लीडरशिप में रोल में हैं वो है श्री सोमदत्त शर्मा जी और इन्होंने इसके पहले काफ़ी सारे एग्जाम्स यूपीएससी का 3 बार मेंस लिखा है, यूपी पीसीएस का मेंस लिखा है, हरियाणा सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा है एंड 2023 में इन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट का CAPF का एग्जाम क्वालिफाई करा. इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके अचीवमेंट्स हैं. तो सोमदत्त वेलकम है आपका इस पर्टिकुलर मीटिंग में. थैंक यू सर. थैंक यू बस सर. हाँ, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा है एग्जामिनेशन को और इंटरव्यू रहता है. तो मैं चाह रहा था ना कि आप हैं और आपके और भी बहुत सारे कलीग हैं जो इस समय सिस्टम में हैं जो सर्व कर रहे हैं नेशन को. तो ये जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं, एक्सपर्ट पैनल है हमारा, वो इन बच्चों का 1-to-1 डेफ सेशन ले जिसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ भी करा है. तो इनका 1-to-1 डेफ ले और मॉक इंटरव्यू ले और इनका कैसे इंटरव्यू क्वालिफाई होगा जो आपका पूरा का पूरा इतना इनरिच्ड जर्नी है ना वो इस चीज़ को आप इनके साथ शेयर करिए और अगला जितना भी हमारे पास टाइम है इनमें इन बच्चों को देखिए कि जितना मैक्सिमम सिलेक्शन हो सके लोगों का. तो आई विल नॉट स्पीक मच, रादर एवरीथिंग नाउ अभी से लेकर के आखिरी के अंत तक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन तक सोमदत्त शर्मा ही इस पूरी मीटिंग को लीड करेंगे. तो सोमदत्त शर्मा जी, ओवर टू यू. एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू नाउ, प्लीज टेक द चार्ज. Thank you. Thanks a lot, Bharat sir, and for providing me this opportunity. And moreover, it's a wonderful opportunity for the students or aspirants here from all walks of forces, from all forces. Assistant commandant will be guiding you for they will be in the parallel mock interviews, and various people will be there in the from who have given the IAS interview for UPSC. They will also be there. So you will have a enriched panel members there. Okay. So let's start. What this program is all about? इसके बारे में start करते हैं. This is an orientation session. ये first session है आपके बारे में जो हमने पूरा का पूरा एक framework तैयार किया है इसके लिए structured framework तैयार किया है for the UPSC CAPF Assistant Commandant 2024 interview preparation. ठीक है, ये एक orientation program है. ठीक है, जिसके बारे में एक ब्रॉड व्यू पॉइंट हम देंगे, फिर बाद के जो सेशंस हैं उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करना है बाद में. ठीक है, अभी एक ब्रॉड व्यू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. So myself, Somdat Sharma, I secured All India Rank 52 in UPSC CAPF Assistant Commandant 2023 exams. Brief about me. This is the experience with the UPSC exams as well as the other kind of exams. Talking about the interview stage, given 3 times interview for the UPSC CAPF Assistant Commandant and 12 times SSB interview for the various forces, including Army, Navy, and Air Force, and 2 times interview for the Cabinet Secretariat. I think most of you guys are aware about this, but if you are not aware still, so I will let you know in the later stages. Talking about the civil services experiences, I have given these means examinations 3 times for the UPSC Civil Services IAS exam, and 1 time for the Indian Forest Services conducted by UPSC, 3 times for the Haryana Civil Services mains, and 1 time mains for the UPPCS, Uttar Pradesh Public Service Commission, and other exams as well. This is CDS, FCAT. These are number of times I have qualified these exams, and these are the exams. You can read from this slide. Talking about my educational qualification, this is BTech in Mechanical Engineering. एक इंटरवेंशन मैं करना चाहूंगा यहाँ पर.
कि मैं जितने भी हमारे यहाँ पर एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं इनको एक बात बताना चाहूँगा कि सोमदत्त शर्मा ने आज तक जितने भी एग्जामिनेशन दिए हैं, तो उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है ना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, हर एक एग्जाम का हर बार क्वालिफाई करा है। ठीक है, तो जितना एक्सपीरियंस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का और मेंस लिखने का सोमदत्त शर्मा के पास है, इतना क्वालिफिकेशन, इतना एक्सपर्टीज मैंने आज तक यूपीएससी और जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ना गवर्नमेंट के, उतना किसी का नहीं देखा है। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई इन्होंने जो भी एग्जाम दिया है, हर किसी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है इन्होंने। बस इतना ही मुझे बोलना था सोमदत्त जी, अब यू कैन कंटिन्यू। द पॉइंट ऑफ द क्रक्स ऑफ दिस ऑल दिस इज, इफ यू आर मतलब एक सर्टेन लेवल की आपने प्रिपरेशन की है ना, तो आपका फिर मतलब अच्छे से आपने प्रिपरेशन की है, तो यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल, यू विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस। ठीक है, टाइम लग सकता है बट यू विल सर्टेनली रीच देयर। ठीक है, this is the last point, that I have done BTech in mechanical engineering from NIT Kurukshetra. So this is all about me. Now talking about this agenda of this discussion we are holding today. दो expectation है major. What you are expecting from us and what we officers are expecting from you people. ठीक है, for the enrichment of this CAPF AC mock interview program. ठीक है, दो है, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। सो गोइंग अहेड, आपसे जो एक्सपेक्टेशन है हमारी, वो ये है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से है। हम इसमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जो कि अगली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा अभी। तो ये कोई भी इसका पैसा नहीं लग रहा है, बट यू डोंट हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। ठीक है, आपको बहुत ही तन्मयता से पूरी मेहनत के साथ में इसमें लगना है। कोई भी जो भी लर्निंग्स आपको होंगी इसमें उनको इम्बाइब करना है, और अपने जो जो भी आप बाहर भी आप मॉक इंटरव्यूज दोगे उनमें भी इसको क्या कहें इंक्लूड करना है, और रियल इंटरव्यू में भी अच्छा करना है। ठीक है, सो इसके लिए आपको करना क्या है, बट यू नीड टू डू, सबसे पहले हम लोग करेंगे 1-to-1 डेप्थ डिस्कशन आपके साथ में। ठीक है, वो सभी के सभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, असिस्टेंट कमांडेंट और जो पैनल जो जिन्होंने आईएएस का इंटरव्यू दिया हुआ है, वो लोग आपके साथ डेप्थ डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ में आपके जो क्वेश्चंस अराइज होंगे, क्वेश्चंस निकलेंगे जो आपके डेप्थ बेस्ड। ठीक है, वो आपको रेडी करने हैं। रेडी 2-3 स्टेजेस में करना है। फर्स्ट वन इज जो आपके आंसर्स हैं, जो आप सोच पा रहे हो, उनके आंसर्स को आपको लिखना है। ठीक है, या तो आप एग्जैक्ट आंसर लिख सकते हैं या फिर आप कीवर्ड्स फॉर्म में। ठीक है, कीवर्ड्स फॉर्म में जो भी आपको सुटेबल लगे। और उस एक बार आपने आंसर रेडी कर लिया, आंसर रेडी इन द सेंस जो बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेफ के, वो आपने रेडी कर लिया। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस भी दो फेज में करना है। फर्स्ट वन इज मिरर प्रैक्टिस, और सेकंड वन इज वीडियो रिकॉर्डिंग। आप अपने फोन से, लैपटॉप से, टैब से आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करिए। आप जो बेसिक क्वेश्चन है टैब वाले वो बोलिए, और उनके साथ फिर आपको आंसर दीजिए, खुद ही आंसर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द फोर्सेस। ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन है ना, सबसे एक्सपेक्टेड है। तो ये इसका आंसर आप अच्छे से रेडी करिए, और वो दिल से निकलना चाहिए। जब आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब आप कई बार उसको प्रैक्टिस कर लोगे, तो दैट विल कम नेचुरली व्हेन यू विल बी अपीयरिंग इन द एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद फिर आपको मॉक इंटरव्यू के लिए आना है हमारे पास भी, और या फिर बाहर कहीं भी वहां पे भी। ये प्रिपरेशन देखो, मॉक इंटरव्यू नहीं कराता है। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज आपको फीडबैक देता है, और लेकिन उससे पहले का जो प्रोग्राम है, हम जो 1-to-1 डेप्थ डिस्कशन करेंगे, जो हम सेशंस लेंगे, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। उसके बाद आपको इंप्लीमेंट करना है आपके मॉक इंटरव्यूज में, देन फाइनली इन द यूपीएससी इंटरव्यू, एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू। ठीक है, सेकंड वन इज यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर रिलीजियसली। डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, पर्टिकुलरली एडिटोरियल्स, एक्सप्लेन पेज। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आता है, द हिंदू में भी आता है। कोई भी अभी एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, क्योंकि अभी आपको डेफ के क्वेश्चंस भी रेडी करने हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस भी रेडी करने हैं, बहुत सारा अभी वर्कलोड होगा आपके पास में। ठीक है, तो अभी आप एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए। जैसे जैसे आपका टाइम थोड़ा सा ये चीजें कवर हो जाएंगी, उसके बाद आप दोनों न्यूज़पेपर कवर कर सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो कि एक न्यूज़पेपर कवर कर लिया, दूसरे के केवल एडिटोरियल्स कर दिए। ठीक है, ओके। और इसमें से आपको इश्यू बेस्ड पढ़ना है, इश्यूज। ठीक है, एक तो आपको पढ़ लिया आपकी क्या क्या चल रहा है अभी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे क्या क्या चल रहा है, ये तो ठीक है। उसके बाद आपको इश्यूज पकड़ने हैं, ठीक, और उनको एनालाइज करना है। उसमें 3 चीज देखनी है आपको। फर्स्ट वन इज बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड में हिस्टोरिकल और उसका कंटेक्स्ट देखना है, ये चीज जो न्यूज में है ये किस वजह से है। ठीक है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट इसका क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। ओके, सेकंड थिंग इज यू हैव टू रीड अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स
demerits और merits about the issues. For example, रसिया यूक्रेन का इशू चल रहा है, इजराइल हमास पर चल रहा है, you have to read about it. ठीक है, pros and cons. और फाइनल थिंग इज यू हैव टू मेक योर ओपिनियन. देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना इंटरव्यू के अंदर, तो हम बात करते हैं तो ये आता है आपका योर टेक. क्या आता है आपका योर टेक, आपका ओपिनियन है इस बारे में. सर इज स्क्रीन नॉट विजिबल? स्क्रीन विजिबल टू यू सर पर्सन? मुझे एक जगह पर विजिबल है, बट आई गेस एक ठीक है ठीक है, शायद डन डन. आ गया, अब आ गया, ठीक है, दिख रहा है मुझे, ओके, विजिबल है। वी आर थैंक यू सर. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस योर टेक. ठीक है, आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में? भाई इजराइल हमास वॉर हो रहा है, रसिया यूक्रेन का इश्यू हो रहा है, और फिलहाल क्या चल रहा है रसिया यूक्रेन में कि जो यूएसए इज इंचिंग क्लोजली टू द रसिया. एंड इवन उसने जो यूएनएससी का सिक्योरिटी काउंसिल का जो वो था, रसिया रसिया का फेवर में किया है यूएसए ने, पहले अगेंस्ट में था. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका उसका मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, किस वजह से चीजें इवॉल्व हो रही हैं. फिर फाइनली आपका 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 ओपिनियन क्या है कि क्या होना चाहिए. अच्छा मिस्टर ए, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है? यू हैव टू बी रेडी विद दिस. ठीक है, यही चीज पूछी जाएगी आपको. प्रोज एंड कॉन्स तो पढ़ लेते हैं यार लोग, लेकिन योर टेक में और एक अच्छा ओपिनियन होना चाहिए. लगना चाहिए कि यार आप एक वेल रेड पर्सन है और एक आप ऑफिसर बनने वाले हैं. ठीक है, अच्छा ये सब करना है आपको, और इंटरनल सिक्योरिटी भी आपको पढ़ना है. ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के देखेंगे हम, कुछ सेशंस ले लें उसके बारे में, कुछ इंपोर्टेंट चीजें बता दें. और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा आपको, अशोक कुमार आईपीएस सर की एक बुक आती है, उसको पढ़ना आप. ठीक है, यहाँ पर कुछ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स भी होंगे जो सीएपीएफ के लिए अपियर हो रहे हैं. देखो आपने जो पढ़ी है ना, मतलब बुक्स जो सिक्योरिटी में, इंटरनल सिक्योरिटी जो आता है हमारे जीएस 3 के अंदर, वो थोड़ा सा एक सैलो पार्ट होता है. मतलब मेंस में लिखने वाली एक अलग बात होती है, लेकिन इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़े डेप्थ में पूछे जाते हैं. तो यू हैव टू रेडी दोज क्वेश्चंस. है ना, आपको अशोक कुमार आईपीएस सर की एक बुक पढ़ लेना, पर्टिकुलरली अबाउट दी सीएपीएफ, उसके बारे में चैप्टर है वो पढ़ लेना. और मेन मेन जो इश्यूज हैं आपके इंटरनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं वो पढ़ लेना. मेन मेन इतना तो कर लेना कंप्लीट. ठीक है, बट आई विल रिकमेंड यार पढ़ लेना अच्छे से उसको, क्वेश्चंस आएंगे और वैसे भी आपकी हेल्प करेगा. सो टॉकिंग अबाउट दिस आवर डिलीवरेबल्स, हम क्या प्रोवाइड करेंगे आपको. फर्स्ट वन इज एज आई डिस्कस्ड, वन टू वन डेफ डिस्कशन होगा सभी के साथ में विद ईच ऑफ योर एस्पिरेंट. वन टू वन डेफ डिस्कशन करेंगे, वहां से क्वेश्चंस निकालेंगे, पोटेंशियल क्वेश्चंस. हमारा आइडिया ये है कि 60% जो इंटरव्यू होता है यूपीएससी इंटरव्यू, एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू, वो प्रेडिक्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू मी. लेकिन मेरी कोशिश रहेगी, मेरी नहीं, सभी सभी जो हमारे पैनल मेंबर्स हैं इनकी कोशिश रहेगी कि आपके वो 60 को 80% तक हम ले जा सकें. ठीक है, इसमें हम काफी सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, जैसे ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूड करेंगे हम लोग. ठीक है, और इश्यूज डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे, तो उसको 80% तक हमें लाने की कोशिश करेंगे. बाकी का जो 20% रहेगा आपके पास में, उसमें आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आपका लाइन ऑफ थॉट एटलीस्ट जनरेट हो जाएगा. आपका लाइन ऑफ थॉट जनरेट हो जाएगा कि कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है तो उसमें क्या अपना व्यू पॉइंट किस तरह से रखना है. ठीक है, कैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के नेचर में आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है. योर टेक जो मैंने बात की थी ना, जैसे योर टेक में जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, कैसे हम इकोनॉमी पॉलिटी और इंटरनेट इकोनॉमी पॉलिटी और इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव में हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो चीज हम माइंड में रखते हुए उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आपका एक लाइन ऑफ थॉट अच्छे से जनरेट हो जाएगा, तो यू विल बी एबल टू सेल थ्रू द इंटरव्यू. ठीक है, ये हमारा टारगेट है. सेकंड थिंग, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू इश्यूज, लिस्ट ऑफ इश्यूज. पहले वीकली देंगे, फिर मंथली, और जब तक आपका इंटरव्यू नहीं आता है तब तक हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको. ठीक है, देखो डेली बेसिस पे इश्यूज देने का कोई पॉइंट नहीं है. पॉइंट मतलब इसका रीजन ये है कि जो इश्यूज है ना वो इवॉल्विंग नेचर के होते हैं. ठीक है, जैसे रशिया यूक्रेन का है, इजराइल हमास का है, ये चीज ऐसा है कि आप एक साथ बैठ के पढ़िए आराम से उसको. ठीक है, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, उसके बारे में अवेयर होइए आप. वीकली में वो जब इश्यूज है वो कंपाइल होके अच्छे से आ जाएंगे, और वीक में आप एक बार खत्म कर देना उनको.
हम लोग क्या रखेंगे, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा कि हम लोग ग्रुप पे डाल देंगे और यू विल हैव एक्सेस टू कमेंट ऑन दिस बिलो दिस, जो अपन डालेंगे उसमें पीडीएफ में या उस फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में। तो वहां पे आप लोग कमेंट कर पाएंगे और इश्यूज को ऐड कर देना वहां पर। जैसे कुछ इश्यूज हैं जो मैंने पढ़े हैं अच्छे से, जो थॉरोली मैं कोशिश करूंगा कवर करने की, लेकिन कुछ इश्यूज लगते हैं कि कुछ चीज मिस हो गई है सर आपसे, तो यू विल बी एबल टू पुट दैट देयर ओनली, ठीक है। फिर वीकली हमारे हो जाएंगे, उसके बाद हम मंथली करेंगे उनको कंपाइल, और फिर इंटरव्यू तक हम लगभग इश्यूज जो है सारे के सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कवर कर लेंगे। ओके, यू हैव टू प्रिपेयर देम, है ना, कुछ ऐसे नहीं करना है कि मतलब इसी इसी फॉर्मेट में करना है जो इश्यूज जो मैंने बताया है, ठीक है। यू हैव टू टेक ईच एंड एवरीथिंग वेरी सीरियसली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट जो प्रीवियस ईयर की ट्रांसक्रिप्ट है स्टूडेंट्स की जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया है, वो प्रोवाइड की जाएगी आपको। और जब तक आपका इंटरव्यू नहीं आता है, उससे पहले के जो उससे पहले के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके इंटरव्यूज हो जाएंगे, कंडक्ट हो जाएंगे कुछ, तो उनकी भी ट्रांसक्रिप्ट हम देने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, ठीक है। जो लोग शेयर करेंगे तो हम उनको आपके पास फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। उससे आपको हेल्प हो जाएगी कि भाई आप राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, या किसी पर्टिकुलर मतलब आपने बीटेक की है सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपका बैकग्राउंड है, या फिर आपने एसएसबी दिए हुए हैं, तो मतलब कुछ जो फैमिलियरिटी है उस चीज की, उस लेवल के आपके क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू सेल थ्रू। ओके, उसके बाद में हम चीज रिजोल्यूशन ऑफ डाउट्स होगा टिल इंटरव्यू स्टेज। जब भी आपका कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चंस का आंसर आप पूछते हो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना होता है, देखो हम मॉडल आंसर नहीं देंगे आपको, ऑब्वियसली इंटरव्यू में कुछ सही या गलत नहीं होता है, वो सूटेबिलिटी होती है। तो हम एक लाइन ऑफ थॉट आपका जनरेट करने की कोशिश करेंगे, और बट आपको अपना आंसर खुद रेडी करना है, और आपके डाउट रिजोल्यूशन में हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ओके, कि आपका बीइंग एन ऑफिसर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कहीं भी आपको डिलेमा आता है कि कहीं भी डिलेमा आ रहा है, तो आपको अपना ओपिनियन कैसे रखना है। ऑलवेज हैव ओपिनियन विद लीगल बैकिंग, ठीक है। वो लीगल होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, वो आपका एम्पैथी दिखाना चाहिए, ठीक है, कंपैशनेट होना चाहिए, ठीक है, आपका एक ह्यूमैनिटी का एंगल होना चाहिए, ठीक है। यू आर एन ऑफिसर, ठीक है, तो वो आपको एंगल आपको प्रेजेंट करना है आंसर्स में। बाकी हम डिलेमा डिस्कस करेंगे बाद में, तो वो चीज बताते चलेंगे आपको। फाइनली हम लोग करेंगे क्या, पैनल इंटरव्यू आपको कंडक्ट कराएंगे, ठीक है, जिसमें आपके एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया है आईएएस के लिए, और जो सिलेक्टेड असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं, ठीक है। सो दिस विल बी आवर डिलीवरेबल्स। यस, फाइनली वी आर प्रोवाइडिंग दिस टेलीग्राम ग्रुप। आप यस, ये टेलीग्राम ग्रुप है सीएपीएफ के लिए, जो भी whoever is appearing for the CAPF इंटरव्यू फाइनली। सो ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर इस जो लिंक है इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाना, और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी वहां पे, ठीक है। दीज आर कॉन्टेक्ट्स यू कैन कनेक्ट हियर इटसेल्फ, ठीक है, ये सारा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और दैट्स फ्रॉम ऑल फ्रॉम आवर साइड एक्चुअली। If you have any doubt right now, you can ask. दिवेश का क्वेश्चन Devesh, है। हाँ, yes. So what will be the timeline of this program? देखिए अभी जो इंटरव्यू है ना देवेश, वो मई में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। देखो एक्चुअली किसी को नहीं पता होता कि कब होगा, मतलब यूपीएससी रिवील नहीं करती ऐसे, बट 2 साल से मई में होता आ रहा है, और एक्सपेक्टेड भी तभी है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे, उसी के हिसाब से हम टाइमलाइन डिसाइड कर लेंगे। देखो 1-to-1 डेव डिस्कशन होगा, उसके बाद में फिर पैनल इंटरव्यू कराएंगे, आपके कुछ सेशंस बीच में भी होंगे, तो उसके हिसाब से जो भी शेड्यूल जनरेट होगा ना वो हम आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है अभी, तो उनके डेफ डिस्कशन में थोड़ा टाइम लगेगा। सो आपके जो इंटरव्यू है ना, 1-to-1 का डेफ कब होना है और उसका कब होना है, आपका पैनल इंटरव्यू कब होना है, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। वेलकम दिवेश। यस, एनीवन, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग, मतलब इफ यू हैव एनी इवन इन एनी सिली डाउट,
don't hesitate to ask. You guys can just unmute yourself. प्लीज एवरीबडी अनम्यूट योरसेल्फ। बोलने के लिए आपको जो आपका ऑडियो है वो ऑन करना पड़ेगा। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन। तो ठीक है, एक्चुअली सोमदत्त, हमारे पास जो इंटरव्यू के लिए जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था ना, जो हमारा गूगल फॉर्म भरा था, तो नियरली 50 स्टूडेंट्स ने हमें भरा है। नियरली अप्रॉक्स 50 स्टूडेंट्स के आसपास हमें फॉर्म भरा था गूगल फॉर्म। लेकिन क्योंकि जो ये हम लोगों ने जो आज की जो ओरिएंटेशन शेड्यूल किया है ना, ये 2 दिन पहले ही किया है, तो शायद इसकी वजह से काफी सारे लोग जो उनको पता चला नहीं होगा, और हर किसी का शेड्यूल होता है। और मेरी कुछ लोगों से फोन पे बात भी हुई थी, तो दो स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि दे आर हैविंग देयर सेशन, इधर ऑनलाइन क्लास हो रहा होता है उनका, या फिर ऑफलाइन कहीं पे कोई कोचिंग कर रहे होते हैं वो लोग। एंड इसके अलावा कुछ वर्किंग प्रोफेशनल, 5 के आसपास वर्किंग प्रोफेशनल से मेरी फोन पे बात हुई थी, तो दे टोल्ड मी कि दे विल बी ऑन देयर वर्क। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी दे पीपल हैव नॉट जॉइंड अस। हम इस मीटिंग इसका वी विल बी सेंडिंग ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा डिटेल्स, फोन नंबर, ईमेल आईडी तो स्टूडेंट के पास है ही। एंड जो नया टेलीग्राम ग्रुप हम लोगों ने बनाया है CAPF BWise IAS वाला, सो ये एक चैनल नहीं है, ये एक ग्रुप है। दिस ग्रुप इज मेड फॉर स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स वेयर दे कैन कम एंड डिस्कस। तो वो चैट करके आपस में ना डिस्कशन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर थिंग पे। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। देयर आर मे बी मल्टीपल रीजन, पीपल आर बिजी इन देयर ओन एक्टिविटीज, चाहे ओरिएंटेशन सेशन है तो स्टार्टिंग में इतने क्वेश्चंस क्लिक ना करे हो, या फिर मे बी दे आर हेजिटेट टू स्पीक अप इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। व्हाटएवर मे बी द रीजन, अभी मैं ये बोलूंगा कि आपका जितना यहाँ पे डिस्कशन था कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, उनको क्या करना है, एंड व्हाट वी विल बी डिलीवरिंग टू देम। सो एक चीज जो आपने बहुत सही बोली वो ये कि ये फ्री इनिशिएटिव है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ग्रांटेड ले लो। सो एज सोमदत्त आपने कई बार बोला है, एंड बहुत सारे जो टॉपर्स हैं CPCA PF के या फिर अदर एग्जामिनेशंस के, दे हैव टोल्ड मेनी टाइम्स कि द थिंग इज कि डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वट एवर टास्क वी आर अलॉटिंग यू, उसको आप टाइम पे करके दो। हमारा फोन नंबर आपके पास है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप उस पर व्हाट्सएप करिए, और आपके पास इमिडिएटली उसके ऊपर आपका विद इन 1 आवर और 2 आवर आपके पास उसका जवाब आएगा, ठीक है। एंड जो डिलीवरेबल्स हैं हमारे विल बी इनिशिएटिंग इन फ्यू डेज, एंड देन आप भी अपने लिए जो आपका प्रण है इंटरव्यू निकालने का, उसके लिए आप स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के, कुछ लोगों ने अपने हैंड रेज करे हैं। अमन शुक्ला, प्लीज आस्क। सर ये मेरा एक क्वेश्चन था कि सर मैं इंग्लिश में मतलब बोल तो लेता हूँ लेकिन एक कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो क्या मैं हिंदी में जा सकता हूँ? और अगर हिंदी में जा सकता हूँ तो क्या मैं इंग्लिश में कुछ वर्ड्स वहाँ पे बोल सकता हूँ? वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं जाएगा? अच्छा, पहले मैं चाहूंगा कि इसका जवाब दे, उसके बाद फिर मैं भी इसका जवाब देता हूँ। Yes. See, who have asked this question? Can you tell your name? सर अमन शुक्ला नाम। Yes, Aman. Aman, the thing is that अभी क्या है ना, सिविल सर्विस का जो इंटरव्यू होता है उसमें तो लैंग्वेज मांगते हैं डेफ में, लेकिन CAPF के इंटरव्यू में लैंग्वेज नहीं मांगते, राइट? तो अभी क्या है कि जो भी देखो तरीका तो ये होता है कि जो भी आप दे रहे हो तो पहले में पूछ रहा है, इंग्लिश में पूछ रहा है तो ट्राई करिए इंग्लिश में आंसर देने की, और हिंदी में पूछ रहा है तो हिंदी में आंसर देने की कोशिश करिए। तरीका तो ये है। लेकिन इफ यू आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी ना, तो यू कैन जस्ट सिंपली टेल। अगर आप स्टक कर रहे हो, देखो आइडिया इज टू कन्वे आवरसेल्फ, है ना। लैंग्वेज कोई ऐसा लैंग्वेज बैरियर नहीं बनना चाहिए। अगर लैंग्वेज की वजह से आप अपने आइडियाज को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू कि आप सिंपली बोल सकते हो, सर आई एम मोर कंफर्टेबल, सर और मैम आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, विल यू प्लीज अलाउ मी टू स्विच टू द सेम। ठीक है, ऐसे आप करके बोल सकते हो। हाँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके आइडिया कन्वे होने चाहिए, ठीक है। अरे वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत कॉर्डियल मेंबर्स होते हैं यार, बहुत सही है, आपका इंटरव्यू सही जाएगा। ने बोला यस हरविंदर, यू वांट टू आस्क समथिंग? आपका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो कंटेंट है ना, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदर की बाकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, आप उसका जवाब दीजिए। और जस्ट बोलते बोलते अगर आप थक जाते हो, चाहे आपको कुछ हेजिटेशन आता है, तो आप 5 सेकंड लगा के उनसे परमिशन ले लीजिए कि सर आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, इतना बोल दीजिए। बोर्ड बहुत कोडियल होता है, ठीक है। जो हम मॉक इंटरव्यू देखते हैं इतने सारे यूट्यूब पर, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ग्रिल किया जाता है, तो CAPF का है, UPSC का है, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन का है,
दे आर नॉट एक्चुअली ग्रिलिंग द स्टूडेंट्स को ग्रिल नहीं करते हैं वो लोग। तो आप बिल्कुल कूल होकर के जाइए, वो लोग आपको शांत करेंगे और उनके आपके बातों का जो कंटेंट है ना, सब्सटेंस है, उनको उससे मतलब है, आपकी भाषा से मतलब नहीं है। आपकी भाषा सिर्फ फॉर्मल होनी चाहिए, या तो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। Thank you, With sir. your permission to speak, sir, Yes. I Harvinder, please. wanted to ask for the transcripts of the students who have given the interview earlier. Can you please arrange that for us? Yes. हरविंदर, आपने आपने अटेंड किया है ना सेशन पूरा? जी तो जी आई जी. टोल्ड देयर कि मतलब ये जो ट्रांसक्रिप्ट है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। Oh, so sorry ठीक है? for missing that out. Thank you very much, कोई sir. नहीं, कोई नहीं। हाँ। और वो जो आपके जैसे आपकी इंटरव्यू की कोई डेट आएगी तो उससे पहले के जो भी ट्रांसक्रिप्ट होंगी ना, जस्ट उस अभी 2025 में जो अभी इंटरव्यूज होंगे 2024 के, तो वो भी कोशिश करेंगे हम, जो बच्चों से अरेंज हो पाएंगे तो वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? जी, जी. Thank you, sir. Thank you very much. हाँ, यस। डॉक्टर अंजू गंगन वांट टू आस्क समथिंग। यस, प्लीज गो अहेड। Sorry, sir, I joined a little late, so I don't know whether you have said the things or not. But I would like to know that I am preparing for 2026 exam. So ओके, this particular group is only for those who pass the prelims and mains or those who are preparing. आई थिंक भरत सर। Dr. Anju, are you talking about UPSC Civil Services examination or CAPF examination? Actually, I'm preparing for IAS exam in CSE. Not this one particularly, but I want to know whether it will be beneficiary for me to join in this group or it will be overloaded. See. The agenda of today's meeting is only about discussion of the अभी जो मई में CAPF का जो जिन लोगों का क्वालिफिकेशन हुआ है ना रिटर्न एग्जामिनेशन का, उसका इंटरव्यू होने वाला है। तो दिस पर्टिकुलर Okay. प्रोग्राम वी आर लॉन्च्ड कि उनके इंटरव्यू के मेंटरशिप के लिए है। ठीक है? इसके अलावा Okay. पैरेलली हमारा CAPF का जो एग्जाम होने वाला है ना, 2025 का नोटिफिकेशन आया है, उसके लिए भी हम लोगों ने पैरेलली मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करा है। तो इसके बाद जो मीटिंग होने वाली है ऑन ट्यूसडे 9 PM, 11th 9 PM, तो उस मीटिंग में विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग। मोरओवर आप चाहे तो CAPF का एग्जामिनेशन एंड देन UPSC का एग्जामिनेशन दोनों दे सकते हो, और दोनों का जो सिलेबस है ना, काफी हद तक, काफी हद तक जो है वो ओवरलैपिंग है। सोमदत्त शर्मा जी है हमारे सामने, इन्होंने CAPF का भी एग्जाम क्वालिफाई करा है एंड UPSC का मेंस भी क्वालिफाई करा है। तो दोनों ही मीटिंग में सोमदत्त हमारे साथ दोनों जगह गाइड करेंगे। डॉक्टर अंजू, टू बी वेरी फ्रैंक और टू बी वेरी ऑनेस्ट, CAPF के लिए स्पेशली मैंने कुछ रेडी नहीं किया था। और इनफैक्ट अभी जो लास्ट 2023 में मेरा पेपर 1 में स्कोर आया था 159 पॉइंट समथिंग, 160 अराउंड, और तीनों ही जो मैंने दिए हैं एग्जाम्स, जिसमें तीनों में इंटरव्यू दिया है, अराउंड 160 मार्क्स आए हैं तीनों में, और सारे प्रीलिम्स भी क्लियर किए हैं। तो रीजन बीइंग इज कि जो मेरी नॉलेज थी उसकी, जो सिविल सर्विसेज की, उसी के बेसिस पे मैंने निकाला है, अलग से ऐसा कुछ नहीं किया। तो जो आप बोल रहे हैं, अगर आपको CAPF देना है, फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको CAPF देना है तो अलग से आपको कुछ करने की ऐसा जरूरत नहीं है खास। ठीक है? यू विल बी एबल टू सेल थ्रू। सेकंड थिंग इज, इफ यू आर अपियरिंग ओनली फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड नॉट इंटरेस्टेड इन द CAPF, सो उसके लिए BYS IAS का अलग से चल रहा है, Okay. ओनली फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जो अभी मैंने लिंक दिया है, ग्रुप का लिंक दिया था, वो उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी CAPF के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनका इंटरव्यू है। Okay. Okay. Thank you so much, sir. ओके, एनीवन एल्स? ठीक है, मुझे लगता है कि मीटिंग वाज वेरी फ्रूटफुल। आपने जो आपका डिस्कशन पॉइंट था कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड व्हाट इज आवर डिलीवरेबल फॉर देयर इंटरव्यू प्रिपरेशन, दोनों चीजें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो गई है। अभी आपने 2 टास्क दिए हैं स्टूडेंट्स को। वन इसकी जो किताब का नाम बताया आपने इंटरनल सिक्योरिटी का, अशोक, क्या नाम बताया था आपने? अशोक कुमार IPS सर की बुक है इंटरनल सिक्योरिटी की। अशोक कुमार IPS की जो बुक है वो। इसके अलावा मीनवाइल इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के जो भी अपडेट्स होते जा रहे हैं, विल बी प्रोवाइडिंग दैट इन द ग्रुप। करंट अफेयर्स आपको बहुत थरली प्रिपेयर करना है, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना है। आप लोगों का 1-to-1 डेफ डिस्कशन होगा हम लोग के साथ, हर एक बच्चे का होगा, एंड देन आफ्टर दैट पैनल इंटरव्यू भी होने वाला है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। टेलीग्राम ग्रुप जो है हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, प्लीज ज्वाइन दैट थिंग। एंड जो हमारा BYS IAS जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर जो नया वाला जो हमारा चैनल है, विल बी एडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो
Bharat sir, you are not audible. एक सेकेंड जरा। सो मैं ये बोल रहा था कि आज का जो एजेंडा था हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। एंड इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, हमारा फोन नंबर आपके पास है, जीमेल आईडी जो है वो आपके पास है, और जो टेलीग्राम वो है हमारा, वो ग्रुप है, वो चैनल नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप उस पर एक्टिवली इंगेज होना शुरू कर दे, बात करना, क्वेश्चन पूछना। पीयर ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो उसके ऊपर आज से ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। मे बी आज के दिन, कल के दिन, 2 से 3 दिन के अंदर उस पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो उस पे आने शुरू हो जाएंगे। तो मे बी विद इन 2 और 3 डेज एंगेजमेंट इतना हो जाएगा कि फ्रूटफुल डिस्कशन उसके ऊपर स्टार्ट हो जाए। सो आई थिंक सर एक चीज, लास्ट चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो है ना हमारा प्रोग्राम है, ऑल्दो ये फ्री है, ठीक है, बट आप ये मत सोचना कि क्वालिटी में कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं आएगा हमारी तरफ से, ठीक है। यू हैव टू वेरी डेडिकेटेड फॉर दिस, ठीक है, यू विल बी एबल टू सेल थ्रू। ठीक है, so that is all from our side. So meeting was very successful and we have spoken what we wanted to tell to our students. ठीक है, please join the group and please be very very disciplined, please be very very motivated. एंड जितना मेहनत आपने करा है अभी अपने रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, उतना ही मेहनत जो है आपको लास्ट स्टेज के लिए भी करना पड़ेगा। हमारा एक्सपर्ट पैनल जिसमें सोमदत्त शर्मा जी उसको लीड करेंगे, एंड इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास एक्चुअली वर्किंग पीपल हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं। So they will be here, they are here to actually guide you, take your mock interview and do this particular thing, this thing, taking mocking one-to-one dab. Okay, so that is all from our side. And Vishwanath, you want? Yes, please ask. Sir, is it okay for me to attend these classes, sir? Because I am recently only joined your UPSC session, so is it okay for us to follow these classes? Certainly, yes. See here, the discussion we'll be leading is mostly for interview. लेकिन अभी आपका जो स्टेज है, that stage is related to a completion of individual subject, maybe history, geography, polity, environment, internal security. So आपको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करिए, बट एक चीज मैं बता दूंगा आपको कि इन द वेरी बिगिनिंग डू नॉट एक्सपेक्ट वेरी मच फ्रॉम योरसेल्फ, क्योंकि इस ग्रुप पे जो लोग हैं ना, दे विल बी वेरी वेरी हाई एंडेड पीपल, इनका बहुत हाई एडवांस लेवल है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपको ये फील ना आ जाए कि बाकी लोग तो बहुत आगे निकल गए हैं और हम पीछे हैं। तो अगर आप इस गैप को सस्टेन कर सकते हो तो प्लीज यू आर वेलकम टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। See, don't compare your first chapter with the someone 100 chapter, right? One day you will be able to reach there, obviously. ठीक है? Nice. So Thank you, sir. yeah, all the best, guys. हाँ sir. Yes, sir. Let's wind up the session then. So thank you so much everybody, and ये टेलीग्राम ग्रुप, I think. Thank you so much everybody.